These are the diluents. These two gallons are dilute and that one is lies. And I think that there must be one other probe cleanser. Where is it? So they have given this one only. So keep it above. Okay, I'm looking for another thing. The probe cleanser. Yeah, probe cleanser. This is not the part of, I think, one part is missing here. That is the reagent scanner, RFID scanner. I will. You can see in that inside whether they have kept it. That's the reagent. No, not there. So when you unbox it, I don't know. You can see there here if they have kept. No. No. That's not. This one is the printer section. Reagent RFID scanner. So where you can scan the reagent. By this it is scanned. Yeah, it is a scanner. Only this company's items will work with it. Yeah, this is a closed. We cannot change This is a closed. other companies. It's a closed system. Yeah, But we asked for open system. I don't know. What about that? I don't know. Okay. Okay, this one is the RFID scanner, and for every reagent you have, you can see, if we look like this, there is RFID tag. You can see this rectangle tag. This one is the RFID tag, and RFID. even RFID is written here. Okay, you need to scan it. I'll show you the demo after a while. You need to scan it. You need to place it, just scan it, and It will automatically catch this. automatically read the instrument. Okay. Okay, this one is the printer. So we have to connect this also, no? Yeah. I thought it is wireless. Another instrument, the printer are combined with the analyzer itself. Yeah, it has. I think they have. Separate printer? It is separate. Something separate arrangement is there. Okay. So, how to load the printer? If you have any idea, I have done any. क्लोज ले जाया करो जब वो किया तो. This one is the thermal paper, so stick. Okay. This one is thermal paper. Okay. Okay. On the action of it, it will write on it. Suppose if I give a Mean upper side. Okay. yeah, this one, this side is to be outside. So like this you have to keep inside. Okay. Okay. Okay, let's. You have one set of reagent only right now. Yeah. Okay. This for I have already told the RFID is written here. The RFID is written here. For the diluent, you have got the RFID tag like this. Yes. Okay. This one also. So we have already checked it. It's No. The RFID information is not fed on this instrument right now. okay. Okay. Yes, when we scan it, it will give the detail. It will give the serial number, RFID. Then it will verify. Reagent Okay. information, and that RFID will not work again on the on this instrument and another instrument also. Okay. It will deactivate that RFID after reading the information from it. Okay. Another one thing I will look. No, we don't know. It's the first instrument you are going to install. Okay. Before that, They are already kept only. Okay. They have not installed any. Okay. It's okay. That is the biochemistry. Yeah. Ayurba. Weight. Weight. Yeah. No, it is not weight. General. Human. In that weight is coming. In the same biochemistry weight is coming or not? Yeah.
No. No. For IRBA, I don't know about IRBA. We No, have no, no. They don't have it now. Only we have means all. second thing dilation को लागि, third thing to maintain the cell morphology, cell को cell size morphology. अब त्यो कस्तो हुन्छ भने सेल अर्को ठाउँमा सेलको osmosis pressure मेन्टेन गर्न आउनको लागि यसलाई यो रप्चर नहोस्, श्रिङ्क नहोस् अथवा बल्क नहोस् भन्नको लागि हो है। यो दुईटा चाहिँ लाइसिसको लागि युज हुन्छ। दिस वान LH लाइज इज फर हिमोग्लोबिन मेजरमेन्ट बेसिकली एन्ड दिस डिफ लाइज इज फर डिफरेन्सियल काउन्टको लागि युज हुने गर्छ। दुईटैकोमा युज हुन्छ एकचोटिमा एकचोटिमा 1 2 3 कुरा युज हुन्छ। यो ब्याकअपमा छ अहिले हो। यो मैले RFID स्क्यानर भने अब के हो म अहिले गरेर बताउँदैछु है। म जोड्दै पनि छु। मैले अहिले के गरेँ, पावर सप्लाई जोडेँ र यो डाइल्युट अहिले युज छैन, यसलाई तलै राख्नु एउटालाई। यो सेक्सन अहिले एकछिनमा म मेसिन सेटअप गरिसके पछाडि प्रिन्टरलाई लगाउँला। ओके, सो यसले यो तिनवटा रिएजेन्ट लिएछ, स्याम्पल म यहाँबाट एक्सपोर्ट गराउँछु भनेदेखि यसले फाल्छ पनि त केही, त्यो पनि कलेक्ट गर्नु अघि एउटा एक्स्ट्रा छ भन्नु यति नै हो। अर्को एक्स्ट्रा छ भने एक्स्ट्रा हुनुपर्ने मैले भेटिनँ, अब हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ र मैले भेटिनँ। स्योर छ लाइजेस आर युज्ड इभन फर मेन्टेनेन्स, स्टार्टअप एन्ड सटडाउन प्रोसेस। Okay, okay. ओके, Oh, also cleaning for cleaning purpose. I will So we cannot decide how many samples. we have got a special likewise if you say I can give you the approximately tentatively value that it will give that much of test. So it is not showing. The instrument इसमें will not अभी ये show. नहीं शो करेगा कि मैं इतना टेस्ट लूँगा, इसमें ये बताएगा कि रिएजेंट वॉल्यूम कितना बता देगा ये Okay. मैं इतना टेस्ट लूँगा, ये नहीं बताएगा। Okay. फिर भी आपकी क्वेश्चन ये है कि इसमें कितना टेस्ट है, मैं कैलकुलेट करके बता सकता हूँ। अगर आप मेरे को ये डिफाइन करके बता दोगे कि मैं डेली को इतना सैंपल रन करूँगा। अच्छा. अगर आप डेली को 1 सैंपल रन करते हो, अगर डेली को आप 10 सैंपल रन करते हो और 50 सैंपल रन करते हो, दे टेस्ट काउंट फॉर विथ दिस रिएजेंट्स गेट्स डिफरेंट Okay. फॉर द एज पर द सैंपल वॉल्यूम। ओके, यो सबै एकैचोटि उसमा लोड गर्नुपर्छ। During installation, you have got this container for waste collection. Yeah. But when for the next time, what would you do? For other hematology, I would say you collect the same waste on this and discard this, or you can keep another gallon for waste collecting and you can discard. It is for one time. One time. It is you need what you can do is that if you pour it again, you can use it again. That is not That institution and previous institution, they have kept it till today and they are collecting all the materials in that only. okay. But you need to be conscious of one thing. There is one sensor. This is the sensor. Waste detection sensor. I will let you know how it works. So that in future, if that happens, that case occur, you will know. So this is the waste outlet tube, and this one is the sensor wire, and this is the actual sensor. Okay, this one we term is as a float sensor. Okay, it is generally for simple logic, it acts as a switch. Okay, suppose here is one is inner core wire, there is another wire. The core is it has got 2 wires here inside. One is connected to this one main electrode, and another is for this body. So what I mean to say that if I check the continuity between these 2 wires, now it's so short. Okay, when the liquid waste level gets rise, I keep it here like this. When it gets rise, the liquid Will high, yeah. will high and make Move it float, up. float
it's upward. Okay, So it and will the close. logic will change. The switch will change. This is the logic how the machine reads the waste is full or not. Okay. But it may happen sometimes. If you move like this, it will give a false trigger, and the warning alarm will come. The wasteful, and all the things, all people will get panic. What will happen? What happened? We should be conscious about it. Okay. The placement and the orientation. So, if we keep it here, it is most likely to chance to get not upright. It will this way, it chance. If we get down, most of the it's more likely to be upright position, so that the false signal will. Not correct. Okay. Yeah. Okay. This is the connection. The instrument will be permanently, or you're gonna shift next position. Yeah. Next position we have to shift, but it will take times around 1 year. It will take time. So that if we need to shift the instrument for another section, it is also not so hard. Just unplug. We will call you again that time. You can make a video call. This is not so hard job. For it's simple. For biochemistry or for immunoassay, if you have that problem, you need to call the engineer for. But for this, you can just detach. You place the instrument to another part. You can install that one also. Which one? This Earbud? one. I am not authorized for that. I can, but I am not authorized for that. I can do that also. This also, but that is I am not authorized for that. Okay. For that, for waste we have the red mark. For diluent is another tube here. You have got a white mark. White is for diluent, red for Waste. It is mentioned here also for color code, so that you will not place it wrong. Yes. White for diluent. White for diluent. Red It's written here also. Yeah. Okay. Okay. Red for waste. See it properly. Okay. सर के में एक दिन करना पड़ेगा सर के में करेंगे बस बिरयानी का So for diluent, there is no sensor. Okay. Okay. As in waste, there is sensor, but in diluent there is no sensor. When you make the instrument read this RFID, when the instrument will read the RFID, it will automatically start the count, such as this one is 5 liter and it will show around 5 liter. Okay, 5.5 liter, it will show around 5 liter. That means your diluent is recharged. Okay. As we recharge our sink, the diluent volume will get recharged. And that's for that period you can use. Okay. So for diluent, no need to. You can just connect here. For opening or tightening, you can just tight. You open this. So we have to remove some blood samples to check. We have some already. We have animals. We have okay. Let's hold for a while. Let's complete first our installation, then we will go for the demo. यसमा यो राख्नु होला हैन नेक्स्ट टाइम देखि पनि अब यो सकेर अर्को चेन्ज गर्नु पर्दाखेरि पनि जस्ट खोलेर यो निकाल्ने अर्कोमा प्लेस गरिदिने है यो 24 घण्टा यसमै हुन्छ 24 घण्टा यसमै यो त यसमै हुन्छ रिएजेन्ट जति सबै यसमै हुन्छ है No need to remove it नो नीड टु रिमुभ इट till it is finished. ओके र ख्याल चाहिँ हुनलाई यहाँनिर यसमा भेन्ट छ एउटा म देखाउँछु ल टेक्निकल्ली कुरा भोलि के इस्यु हुनसक्छ यहाँनिर एउटा सानो भेन्ट छ होइन सानो पाल जस्तो छ कहिलेकाहीँ केही कारणले यो पाल राम्रोसँग खुलेन भने यहाँबाट यसले डाइल्युन्ट तान्न सक्दैन इट विल नट एस्पिरेट अर ड्रेन द डाइल्युन्ट प्रपरली That time we have to. So you can slightly, this much is okay. Slightly lose it, that would be okay. Okay. Okay, we have placed it, we have power it, okay. पछाडि यति नै हुन्छ पछाडि तपाईँले चलाउनु पर्दैन र वेस्टको कलेक्सन अब म तलपट्टि होला पछाडिपट्टिको भाग ओके
तपाईँलाई मैले रिमाइन्डर फेरि पनि गराउँछु योलाई चाहिँ ट्युब 3 पिन नै लगाइदिनु होला है, किनभने यो चाहिँ युरोपियन स्ट्यान्डर्डको बनाएको थियो, यहाँ हाम्रो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ यस्तो खालकोमा आउँछ कि उनीहरूकोमा चाहिँ छुट्टै एउटा नच लागेर आएको हुन्छ है. सो पावर बटन, दिस वान इज द पावर बटन अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट. ओके, आई विल पावर अन इट. प्रत्यक्षले अन गर्दा हामीले हातै लानु पऱ्यो कि अनै गरिराख्नु पर्दैन. अनै हुन्छ या त चाहिँ अफ गर्नु डाइरेक्ट. एउटा कुरा म सोध्छु ल. So how much time it will take to start? स्टार्ट Yeah. initialization for very first it will take a little time. मेन्ड्री एनिमल I think 2-3 minutes, but its sample throughput is 60 samples per hour. 60. That means you can get one sample. You can run one sample in 1 minute. Yeah, okay. The fluidic system is not initialized yet, so you have the error message. This. So here we have not added this sample, that's why also. No, this also. इनिसियलाइजिङ चेकिङ हाइड्रोलिक सिस्टम. हाइड्रोलिक मतलब फ्लुइडिक सिस्टम छ, लिक्विड एयरको. यसलाई त्यति साह्रो पर्दैन, म भनिदिँदैछु. जुन कुरा तपाईँहरूलाई नोटिसेबल गर्नुपर्छ त्यो कुरालाई चाहिँ गर्नु होला. अहिले इनिसियलाइजेसन हुन टाइम पनि लागिरहेको होला. मलाई अर्को यो लाइट पनि दिनु. सो यस्तो बेलामा आयो भने बिप गरिरहेछ नि, जस्ट यहाँ स्क्रिन टच गर्नुभयो भने बिप आफै पनि जान्छ. फर्स्ट लोड गरौँ. यसलाई चाहिँ अब यहाँ टिप्स छ भने तपाईँहरूको टिप्स युज गर्नु होला. मैले टिप्स भेटिनँ. यसलाई चाहिँ क्लिन एउटा सफा चिजले चाहिँ बन्द गर्नु पऱ्यो. सो एज कन्टामिनेसन चाहिँ नहोस्. यो फेरि रिएजेन्ट कन्टामिनेटेड भयो भने समस्या आउँछ. यसको लागि पनि फर ग्रिन एलाइज ग्रिन मार्क गरेको छ होइन. अनि त्यस पछाडि डिफ्लाइजको लागि रेड मार्क गरेको छ. यसको लागि छुट्टै कनेक्टर छ. कनेक्टर पनि इन्सर्ट गरिदिन्छु. सकभर हातले पनि नछुने यो ट्युबहरू. ग्लोभ्स लगाएर गर्नुपर्छ. ग्लोभ्स छैन, ग्लोभ्समा पनि ऊ आउनसक्छ तपाईँको के भन्छ लेटेक्स हुन्छ. केले चाहिँ गर्नु हातैले सकभर हातले नछुने गरेर अलिक ध्यान पाइपलाई चाहिँ यो ट्युबलाई, किनभने यो त लिक्विडमा इन्सर्ट हुन्छ कि रिएजेन्टमा. रिएजेन्ट अब हाम्रो हातको फोरले गर्दा रिएजेन्ट कन्टामिनेसन हुनसक्छ. यो फर्स्ट टाइमको लागि मात्र. नेक्स्ट टाइमदेखि तपाईँले गर्नु पऱ्यो भने यो टक्क निकाल्ने अर्कोमा हाल्ने हो. त्यति मात्र. ग्रिन टु ग्रिनमा ख्याल राख्नु पऱ्यो, फेरि मिल्दैन. यसलाई पनि हल्का यहाँनिर भ्यान्ट त छ, त्यही पनि हल्का हल्का यसो अलिकति छोडिदिनु भयो भने यी सब प्याक भएर चाहिँ निकाल्नु परेन होइन. सिधेपछि मात्रै निकाल्नु पर्यो. सिद्धेपछि निकाल्ने. त्यो सिद्धेको इन्फर्मेसन मेसेज तपाईँलाई यहाँ क्याप्चर गरी पाउनुहुन्छ. यसलाई खोल्नु. यसलाई यसरी बल पार्नु. यो खास मेरो उसको अलिकतिको प्रोब हो छोड्ने. सो रिएजेन्टको यहाँले राखेँ मात्र होइन, स्क्यान गर्नुहुन्छ. यसलाई पनि रिएजेन्टको इन्फर्मेसन स्क्यान गराउनु पर्दाखेरि यहाँ आरएफआइडीलाई यो आरएफआइडी ट्यागसँग लगाउनुपर्छ. म गरिदिँदैछु पछिमा. अब तपाईँलाई भन्दै गर्दाखेरि मैले स्टेप पनि मिसिरहेको छु कि. यो चाहिँ हराउनु भएन. यो हरायो भने फेरि
स्क्यान गर्नु सकिँदैन, सकिन्छ नि डबल साइड आफूलाई चाहिँ अलिकति ख्याल राखेर चलाउनु होला। ओके, यहाँ आयो होइन, यो पनि कनेक्ट गरेँ, यो पनि कनेक्ट गरेँ। अब बेसिकल्ली म सर्भिसबाट जान्छु अहिले। हजुरहरू चाहिँ एडमिन मोडबाट चलाउनु होला, नभए युजर क्रिएट गर्न एडमिन युजर क्रिएट पनि गर्न मिल्छ, युजर क्रिएट पनि गर्न सकिन्छ। Okay, this is not initialized yet. Okay, we have the liquid अभी तक इसके इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पे मल्टीपल, अगर ये इसको ओपन करेंगे यू विल हैव मल्टीपल वॉल्व्स, ट्यूब लाइन्स, रीडिंग्स, चैम्बर है। वहाँ पे अभी तक लिक्विड नहीं गया है, इंस्ट्रूमेंट इज नॉट प्रॉपर्ली इनिशियलाइज्ड yet. So for that setup, oh no, maintenance spray dilute. Now I started. No? Now it will यहाँ से लिक्विड अंदर जा रहा है, डायलूट अंदर जा रहा है। अब देख सकते हो अभी ये फिल, कैन यू सी? Yeah. Prime. What is prime? फर्स्ट इनिशियल हाँ, It will throw out. वेस्ट कलेक्ट नहीं करेंगे, वेस्ट कंटेनर हाल्नु पऱ्यो नि। याद आउनु खाएपछि यसले फाल्छ पनि, पोखिएको चाहिँ होइन, यसले फालेको हो। ऊ जस्तै गर्दो रहेछ अघि अब त्यो एचपिएलसी हुन्छ नि फर्स्टमा फर्जिन एचपिएलसी कुनको छ यहाँ तपाईँहरू? छैन एचपिएलसी छैन? अब ल्याउने भनेको अब लाएंगे ऊपर. अब ल्याएँ एचपिएलसी के को लागि? एचपिएलसी कुन पर्पजको लागि? एचबिए1सी त्यसको लागि त होइन, प्रोटिनको लागि जेनरलको लागि। जेनरल ठिक छ, मान्छे चाहियो, इन्स्ट्रुमेन्ट चाहियो भने मलाई खबर गर्नु होला। माइन्डेको त छैन, म अर्को कम्पनीको म कुरा गरिदिनु पर्छ। यो अनि त्यो भ्याकुम ड्रायरहरू हुन्छ I'll give one contact number for you. भ्याकुम ड्रायरहरू भन्नु ल, कुन कम्पनीको छ यस्तो? उहाँहरूले जापानिज मात्रै गर्नुहुन्छ त्यो? ठ्याक्कै थाहा छैन, कम्पनीको त टेन्डर निकालेरै गर्ने होला। जापानिज हो र लाइफ ल्याइज त होइन, भ्याकुम ड्रायर मात्रै लाइफलाइजर पनि छ। लाइफ What is the cost? कस्ट कति कस्ट आई डोन्ट नो, जापानिजवाला आयो कस्ट आई डोन्ट नो। सिम्पल भ्याकुम ड्रायर फर ल्याबको डाइलेन्ट पनि मेन्टेन गरेर रिपको पनि प्राइमिङ गर्छु। ये देख रहा है कितना निकाल दिया. कितना खाया कितना खाया देखना पड़ेगा ना। कितना निकाला. उसँग एउटा प्रो क्लिन्जर पनि आउनु पर्ने हो। पानी से नहीं धो सकते क्या? अब पानी लगाउने बित्तिकै पुगिहाल्यो। यस्तो छ कि दिस वान इज अ क्लोज सिस्टम। यसमा जति भोल्युम छ तपाईँले मेसिनले रिड गरेर त्यति भोल्युम अनुसारले घटेर यहाँ आइ नै हाल्छ हो। अलरेडी क्यालकुलेट कथमको खासियत, तपाईँले यो बाहेक अर्को कुनै डाइल्युन्ट कम्पनीको डाइल्युन्ट त्यसको पनि डाइल्युन्ट आउँछ, त्यसको डाइल्युन्ट पनि युज गर्न खोज्नुभयो भने मेसिन विल नट फङ्सन, किनभने यसको रिचार्ज डाइल्युन्ट रिचार्ज नै सकिसकेको छ। यु क्यान ओन्ली रिचार्ज विथ दिस आरएफआई। यो आरएफआईले अरूको इन्स्ट्रुमेन्टको पर्दैन, यसमा आफ्नै पर्छ। क्लोज सिस्टम, सबको क्लोज सिस्टम, त्यो पनि क्लोज सिस्टम। यसले अटोमेटिक स्क्यान गरिसक्यो गरेको छ, गरेको छ। यस्तो पनि फिजा आयो फिजा आयो किन सक्छ
सर्फेक्टेन्ट हो नि त यो भयो ओके प्राइमिङ ओके ओके अर्को एलएसलाई यहाँ थिचिदिउँ एलएसलाई नै प्राइम गर्नु डेट भी आ गया देखो इस पे मेन्टेनेन्स यो त गर्नु परेन अब हामीले 24/2 के पर्छ पो भन्दैछु त अहिले एकैचोटि सोध्नु भयो भने त मैले फेरि त्यहाँ त्यो सिरियली मिस म आउट अफ ट्र्याक जान्छु फेरि मिस गर्छु मैले अब इन्स्टल गरेर तपाईँलाई त्यो हाउ टु युज द इन्स्ट्रुमेन्ट हाउ टु ह्यान्डल इट हाउ टु रिपोर्ट इट हाउ टु मेन्टेन इट म त्यो त भन्न बाँकी नै छ अहिले भनिदिनु पर्ने यो के आयो ल्यापटपका भयो भयो -40 -40 भी क्या है उधर -80 है वो चला ही नहीं है उसको ही बनाना पड़ेगा कब से बंद है वो -40 80 का है वहाँ पर 20 है -80 है -20 है -20 है तो अच्छा है -80 में तो सभी -80 में तो इधर सारा पावर यूज हो जाता है अच्छा खासा धूड़ धाड़ धड़ाका होता है आवाज आता है उसमें पता है थोड़ा भी इधर उधर होता फ्लैक्चुएशन तो बहुत चिल्लाता टा 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 ये लैपटॉप तो किस कंपनी किसने दिया ये वायर लगाया ना वाइट वाला मैले प्रिन्टर जोडेँ प्रिंटर कनेक्ट किया है प्रिन्टर कम्युनिकेटर प्रिन्टर लगाएँ यो दुईटा तल माथि जुनमा लाउँदा नि फेरि ए चारवटा जुन यो कम्प्युटर जस्तै हो सर जुन जता लगायो यसले अटोमेटिक थाहा पाउँछ सो आई एक बार मैं ब्लैंक रन करता हूँ मतलब विदाउट एस्पिरेट इसमें ये सैंपल एस्पिरेट करने वाला सैंपल प्रोब है ठीक है यहाँ पे एक पुश बटन स्विच है हाँ स्विच पुसा ऐसे ही दबाओगे तो ये पूरा दब जाएगा दब गया नहीं दबाना नहीं दबाना था मैं बता रहा था आपको नहीं दबाना। अब ये सैम्पलिंग मोड पे चला गया है ना हाँ, एक दबाने सैंपल के हो बाद। गया। लेकिन इसने क्या किया सैंपल तो लिया नहीं हाँ ऐसे हवा ही ले लिया हवा ले लिया फॉर दैट इंस्टेंट इफ इसने कोई पार्टिकल अघि त पार्टिकल यहाँ पे गए नहीं यहाँ अहिले कुनै पनि पार्टिकल सेल गएको छैन भने त्यो बेलामा अहिले मेसिनले भ्यालु के दिनुपर्छ 00 आरआरको 00 भ्यालु दिनुपर्छ जस्तै हामीले त यो ब्ल्याङ्क त हरेकपल्ट गर्नु पर्दैन ब्ल्याङ्कमा के राख्छु केही पर्दैन कहे नहीं कोई जरूरत नहीं है मैले- एक बार स्टेबलाइज कर दिया खत्म मैले क्योंकि हाम्रो केमिस्ट्री में तो ब्ल्याङ्क डिस्टिलबाट त्यो लाग्दैन बेग्लै केमिस्ट्रीमा त हुँदैन डिस्ट्रिबाट कति कति ये तो मोटा होता है क्या यही गलत है चलो अब म फर्स्टमा यो मसिनले कसरी काम गर्छ भनेर भन्छु है त हाउ इट वर्क्स र यो बिचमा एउटा हेमेटोलोजी एनालाइजर यसले के गर्छ सेल्स काउन्ट गर्छ अर इन्जिनियरिङ अथवा टेक्निकल्ली भाषामा भन्नुपर्दा दिस वान इज अ पार्टिकल काउन्टर सेल पनि अ टाइप अफ पार्टिकल हो जसले चाहिँ सेल त्यसको साइज अनुसार यसले काउन्ट गर्ने काम गर्छ सेलमा सबैभन्दा सानो प्लेटलेट्स त्यस पछाडि अलिक ठुलो आरबिसी सबैभन्दा ठुलो डब्लुबिसी सेलको साइज प्लस सेलको मोर्फोलोजी र इन्टरनल स्ट्रक्चर ग्रेनुअलिटीको र इन्टरनल कम्प्लेक्सिटीको आधारमा यो मेसिनले त्यसलाई डिफ्रेन्सिएट गरेर काउन्ट गर्ने काम गर्छ है फर्स्टमा यसले के हामीले यहाँबाट स्याम्पल एस्पिरेट गर्छौँ स्याम्पल एस्पिरेसन युनिट यो हो स्याम्पल फर्स्टमा यसले 19 माइक्रोलिटर स्याम्पल एस्पिरेट गरिसके पछाडि यसले फर्स्ट स्याम्पललाई लगेर डब्लुबिसी यसमा दुईवटा च्याम्बर छ मैले देखाउनलाई यहाँ खोल्नलाई फेरि पुरै खोल्नुपर्छ खोलियो भने खोलेर हेर्ने हो भने आउँछु खोल के देखेंगे हाँ, देख खोल के देखेंगे लेकिन ऐसा तो मैं कहीं नहीं करता हूँ डेमो के टाइम लेकिन कर देता हूँ हाँ चलो ठीक है हम लोग स्पेशल स्पेशल है सर वो ब्लड कहाँ पर रखे इसमें खोल के हमको क्या क्या पता चलेगा मैं बता रहा हूँ कि हाउ इट वर्क्स एक काम कैसे करता है बताने के लिए पहले इसको आपको मैं बताऊँ आप विजुअलाइज करो इससे अच्छा है आप देखो
ओके ओहो, ये तो आर्मी क्लास जैसा लग रहा है। ये अंदर की बात है, अंदर की बात है, ठीक है। दिस वन इज द सैंपल एस्पिरेशन नीडल, ओके। दिस अंधेरा हो गया, रुकना। हाँ नहीं दिख रहा है, बहुत ही ओके। एंड दिस वन इज़ द WBC चैम्बर। यहाँ पे इसको, अगर इसको भी देखना है इसको भी खोलना पड़ेगा, फिलहाल अभी नहीं खोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ हाउ इट वर्क्स। WBC चैम्बर, दिस वन इज़ द RBC चैम्बर। नीडल फर्स्ट सैंपल एस्पिरेट करके WBC चैम्बर पे ले जाएगा, वहाँ पर डाइल्यूशन करेगा, डाइल्यूशन करने के बाद फिर डाइल्यूटेड सैंपल एस्पिरेट करके RBC चैम्बर पे ले जाएगा। RBC एंड प्लेटलेट्स विल काउंट फ्रॉम दिस चैम्बर। एंड रिगार्डिंग WBC डाइल्यूशन, इसके बाद आरबीसी काउंट के बाद इसमें फर्स्ट एलेक्ट्रोलाइज डालेगा, उससे क्या होगा, हीमोग्लोबिन मेजर्ड होगा। और जितने भी WBC बचा है इसमें वो उसके बाद फिर डिफ्लाइज इसमें डालेगा। मैं कितना डालेगा वो टेक्निकली सब मैं बता रहा हूँ, डालेगा। फिर उसमें क्या है, डिफ्लाइज स्टेन करता है WBC सेल को, और इसको यहाँ से ऊपर एक ऑप्टिकल मेजरमेंट फ्लो साइटोमेट्री चैम्बर है, ऊपर जाके वो काउंट होगा, ठीक है। मैं अभी एक डेमो करके आपको दिखाता हूँ रैंडमली ब्लैंक सैंपल के पास, ठीक है। हाउ इट वर्क्स, लेट्स सी। मान लो सैंपल एस्पिरेट कर लिया उसने, ऊपर गया, हीट करने के बाद यहाँ पे डाला सैंपल, ठीक है। डाइल्यूशन वट एवर गोइंग ऑन, देयर आर मल्टीपल ऑफ बल्ब्स गोइंग हियर फॉर प्राइमिंग एंड मूविंग डाइल्यूट रिएजेंट्स, सारे काम यही बल्ब और पंप कंट्रोल करता है। ये वैक्यूम चैम्बर है जहाँ से नेगेटिव प्रेशर बनता है, लाइट आ रहा है। नेगेटिव प्रेशर बनता है। और कहीं पे कुछ लिक्विड खींच ना हो, यहाँ खींच, यहाँ ऑल ओवर द लिक्विड गोज थ्रू ईयर एंड देन आफ्टर इट विल गेट ड्रेन आउट टू दिस सेक्शन। और वैक्यूम बनाने का काम ये पंप करता है। चलो ये आपको इतना ज़रूरी नहीं है, सिंपली टू नो। तो अब यहाँ मैं क्या क्या हुआ है सब कुछ एक ही साथ में नहीं बता सकता, क्योंकि मिली सेकेंड के इंटरवल में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है यहाँ पे। इतने सारे बल्ब है, इतने सारे रिएजेंट, कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ किस टाइम स्विच होना है, कहाँ लेके कहाँ पुश करना एक है, बार ब्लॉड ला के देंगे तो सब था पता है कहाँ जाएगा, पता चल जाएगा बड़ा आपको, पता चलेगा। ठीक है। तो ये हमने खोल के आपको थोड़ा दिखा दिया कि हाउ इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। सो ब्लैंक फॉर ब्लैंक काउंट 0.08 इंटू, व्हाट आर द यूनिट यू प्रेफर। यहाँ पे रिपोर्टिंग यूनिट क्या चलता है आप मेरे को बताओगे तो आई कैन चेंज एज पर यूर पर ml यहाँ पर लीटर है ना, पर ml कर सकते हैं। डेसीलीटर हुआ क्या होता है? डेसीलीटर, सो हाँ, डेसीलीटर। अगर आप इसमें चेंज करना चाहते हो तो जाना है और इसमें जाके सिस्टम एक्जुलरी सेटअप, सॉरी पैरामीटर सेटअप, पैरामीटर में अब यहाँ जाके आपको WBC के लिए सर किस यहाँ पे इंटरनेशनल पे जाएंगे। पहले WBC के लिए आप कौन सा यूनिट रखना चाहते हो, माइक्रोलीटर 10 to the power 3 microliter, okay. So all WBC value will be counted on this. Okay, neutrophil, these are the absolute value and these are the percentage value, no need to do for that. And for RBC 10 to the power 6 gram per DL, I think hematocrit percentage, okay. MCV फेमटोलीटर पे ये है, ये सही है, ग्राम पर डेसीलीटर। परसेंटेज RDWC परसेंटेज पे रखो आप, ये ठीक है। प्लेटलेट्स 10 to the power 3 फेमटोलीटर पे ये ठीक है, ये परसेंटेज पे रखें। अगर आप मैंने यहाँ पे डेटा चेंज किया, इनपुट यूनिट चेंज किया, ठीक है। अब ये जो यूनिट चेंज हुआ है इसको आपको सेव करना है, तो आप यहाँ इनमें से कहीं पर भी किसी पे भी आप क्लिक कर सकते हो। इट विल गिव अ मैसेज पॉप आउट टू सेव, ठीक है। मैं सपोज सैम्पल सेव करना है इसको, हाँ यस, अभी सेव हो गया। तो मैं मेन मेन्यू पे जाता हूँ तो ये ओके। सो लेट्स स्टार्ट हाउ
we do the analysis. Yes. Okay. Here is the main menu. Here is sample analysis, table review, QC, reagent setup, diluent, and print. These are the options. Okay. For main menu, from main menu, drop down menu, we have got sample analysis. This one is the same. Table review, this one is same. QC is you must have a calibrator for calibration process. अभी calibrator नहीं है, अभी control भी नहीं है. मैं आपको नहीं बताऊंगा, नहीं बता सकता फिलहाल how we do that. हमको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा. नहीं इधर ही हो जाता है इसी में. ये फैक्ट्री कैलिब्रेटेड है. After a long use, or if you find the instrument is not giving a proper result, That time you at have that to time call. you need to calibrate. नहीं हो इस जैसे उसमें होता है 1 year कैलिब्रेशन ईयरली, इधर नहीं होता है. No need to. No need to do that. Systems and these are the system setup, date and time, print ये अरू कुराहरू सेटअप छ हो. यहाँ गएर तपाईँले यहाँनिर नयाँ युजरको पासवर्ड र क्रिएट गर्नु पऱ्यो भने यहाँ जान सक्नुहुन्छ है. त्यस पछाडि एक्जुलरी सेटअप यो पनि पर्दैन. प्यारामिटर सेटअप मैले भर्खर भने मेन्टेनेन्सको पार्ट यो चाहिँ मैले अहिले सर्भिस युजरबाट खोलेको हुनाले यो मेन्टेनेन्स डबल मेन्टेनेन्सको सर्भिसले गर्ने मेन्टेनेन्स इन्जिनियरिङ सेक्सनबाट गर्ने मेन्टेनेन्सको इन्फर्मेसन यहाँ छ हो. यो अहिले म पछि अर्कोमा भन्नुला. मेन्टेनेन्स जेनरल मेन्टेनेन्सको चाहिँ तपाईँले यहाँबाट यो मेन्टेनेन्सहरू गर्नुहुन्छ. आई विल टेल यु लेटर. एकछिनमा भन्नुहोला प्रोसेस वाइज गएर. सो स्ट्याटस लगाउट यो केही परेन. अब फर्स्टमा यु सुड नो हाउ टु रन द स्याम्पल. सो ओके स्याम्पल आइडी चाहिँ यसमा आइडी मतलब सिरियल नम्बर चाहिँ सिन्क्रोनसली के अरे एसेन्डिङ अर्डरमा इन्क्रिज हुँदै जान्छ. ओके 6, 7, 8, 9, 10 यो चाहिँ सिरियल नम्बर आयो जस्तो भयो. पेसेन्ट आइडी इन्फर्मेसन अरू केही राख्नु पऱ्यो चाहियो भने अब तपाईँले यसको डेमोग्राफिक इन्फर्मेसन. Here we have to change the species, right? Demographic information or the animal species type you can define. From next sample you will give this information. Patient ID, sample ID, this one is simply like a serial number. Patient ID, अब तपाईँको patient ID यहाँबाट क्रिएट गर्छ भने patient ID, gender, owner's name, यो veterinarian, comedian, dog हो भने dog. Yes, here is the lots of option. Suppose we are doing dog, cat, horse, Rat. ferret, rat. These are the veterinary options for you. Okay. Rat. Suppose we have the rat sample. We'll click on rat. Patient name, age, year. These are the information where you fill the demographic information. मोडमा के छ? कहाँ जानु? Mode. This one is a whole blood or a pre-diluted. Whole blood गर्ने कि pre-diluted गर्ने भनेर ट्राई गर्यो. हाम्रो whole blood चल्छ अहिले हो. यहाँबाट पेसेन्ट आइडी फर इक्जाम्पल केही त राख्दिउँ. अहिले यो खोलिहालेँ मैले 425 भनेर राखिदिएँ पेसेन्ट आइडी. अरू इन्फर्मेसन पनि तपाईँले राख्नु चाहनुहुन्छ भने सक्नुहुन्छ. देन आफ्टर यु गिभ ओके. So first run one, otherwise my memory will full. Make it fast. Okay, bring that sample. अब अघि यहाँ के थियो? डग थियो. अब अहिले ऱ्याट आयो. ठिक है. नाउ ए स्याम्पल यहीँ रहेछ. मुसा होइन, म त स्याम्पल ल्याउनु भनेको मुसै ल्याउनुहोस्. ओके. For hematology instrument, you must have one blood roller here, so that the blood evenly get mixed, and the blood cells will homogeneously get mixed each other. Blood roller. छैन भने ल. it's useless. It's useless now. It's useless. Sample is Useless. Oh, It's clotted. we have checked it, but No, it is not working. It did not work. If we try to aspirate, the machine will get. Oh, we have to separate that. नहीं इसमें तो इसमें तो नहीं करते ना. हाँ इसमें नहीं करते. इसमें तो क्लॉड ही नहीं होना चाहिए. नहीं होना चाहिए था. अब I don't know why this tube. the instrument, the tube is not working. अब इसमें करेगा तो ये सैंपल क्लॉग एरर मैसेज ऐसे लगा साइड में. खोल यसरी राखेर तानी खोल के लगा. यहाँ राख्ने अनि यहाँ थिच्ने. अघि थिचेर क्या अनि उसले सट तानेर गइहाल्छ. यहाँनिर डबल क्लिक गर्छ, टिटिट गर्छ अनि त्यसको चाहिँ स्याम्पल माइक्रो लिटरमा तान्छ भन्नु होइन? कति माइक्रो लिटर? 19 माइक्रोलिटर. बहुत कम लेता है. बहुत तो कम. मिक्स गरिराख्ने. यसो जैसे सैंपल कभी भी ऐसे मिक्स नहीं करते. ठीक है. सेल्स रप्चर हो जाता है. आप सैंपल मिक्स करोगे तो ऐसे करोगे जेंटली. इसीलिए आपको यहाँ पे एक रोलर चाहिए. देखो अभी यो अहिले जम्न लागिसकेको छ. दिज आर द भ्यालुज.
देखो इसका प्लेटलेट्स Value आ कितना गया। रहा है, कम आ रहा है। हाँ प्लेटलेट एमसी प्लेटलेट्स बहुत कम आ रहा है 40 PLT है। हाँ PLT 46 है कि इसका रेंज कितना होता है मेरे को नहीं पता ये सब। माउस में कितना आएगा, माउस एनिमल का डिफरेंट होगा ना, रेड का देखना पड़ेगा। हाँ ये वैल्यू ये वैल्यू तो कुछ मतलब यो त हामीले एउटा रिक्स के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ यहीँभित्र जम्ने पनि रिक्स हुन्छ नि त, त्यही भएर हामीले चाहिँ नेक्स्ट सैंपल है हाँ यहीँभित्र जम्ने रिक्स हुन्छ, त्यही भएर यो चाहिन्छ नि। EDTA चाहिन्छ यो त यो मेसिन त त्यो त्यस्तो जम्मा लाइट चालू करके आना खाले सारा। भनेर मेसिन सबै बिग्रिन्छ। त्यही त EDTA चाहिन्छ हामीलाई, जम्नै भएन। मेरो पनि भेटमा धेरै एक्सपिरियन्स छैन, किसका एनिमल मेरा भी जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं। ह्यूमन में होता तो मैं आपको ज़्यादा कुछ बताता है, इसमें वेट में कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। एक ही मैंने इससे आगे एक जगह काठमांडू में नहीं ऐसा ही रहता है, एक दो पैरामीटर्स इधर उधर होता है, यही- सबका है, ह्यूमन का भी होता है वो। यही मॉडल मैंने कितना आया था? रजिस्टर किया था। कितना आया? 6 लाख से 1 लाख, वो 15 लाख दिखा रहा है ना। दिखा रहा है, तो ये तो 10⁻³ तो ठीक ही है। ठीक ही है वो इधर उधर होता है, उसमें रेंज जो सेट किया उसके हिसाब से रहेगा। नहीं 600 होना चाहिए, 600 to 1500। देखो आ गया, ये सही है। ये सही है, देखो वही चीज़ है, वही हाँ चीज़ है। अभी ठीक है। वो बराबर हिला नहीं था ना, इसलिए आया था। 1100 मतलब ठीक है 1500। देखो फिर एक बार और बताता हूँ। हाँ, एक बार और। सैंपल आप एकदम जेंटली मिक्स करना, इसीलिए रोलर ज़रूरी है। लगाने से पहले यू नीड टू मिक्स इट प्रॉपर्ली, ठीक है। यू नीड टू रोलर आप भी प्रोवाइड करती है कंपनी मिनट्रे? वो आप लोकल परचेस करो, यहाँ पर मिल जाता है, अच्छा लोकल परचेस करो जेंटली। अगर आप इसको 3 दफ़ा मैंने एक ही सैंपल रन किया हूँ। सो इसका हिस्ट्री आप यहाँ से देख सकते हैं फ्रॉम टेबल रिव्यू। रुको अभी चल रहा है। अभी चल रहा है ना। मैं अपना टिकट बुकिंग कराता हूँ क्योंकि जाना ज़रूरी है। कल दोस्त की शादी है, नहीं पहुँचूंगा तो मारेगा। If the sample handling is not proper, if the sample is not proper, you will have lots of issue on report. 93 आ गया थोड़ा। ये तो बहुत ही वो आ रहा है फ्लक्चुएशन। Fluctuation तो रहेगा ही। थोड़ा रहता है थोड़ा प्लेटलेट्स रहता में। है। प्लेटलेट्स में रहता है, इसलिए भी रहता है क्योंकि आपकी अर्थिंग प्रॉपर नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। फॉर WBC शुरू में ये कितना दिखाया था 5.7। फर्स्ट सैंपल वाज नॉट मिक्सड प्रॉपर्ली। सेकेंड में आप 7.4 to 7.56। न्यूट्रोफिल दीज आर द वैल्यू 1.0695 ये आ रहा है। ठीक है, तो इसमें उसके बाद RBC देखता हूँ मैं। RBC 8.2 8.3। राउंड ये ठीक है, ये हीमोग्लोबिन ये फर्स्ट को सैंपल छोड़ो आप, ये प्रॉपर्टी 15.8 15.9। ठीक है, ये सिगरेट पीता है क्या, इतना हाई आ गया इसका। SCT 44 ये सही है। सिगरेट खाते हो क्या आप? नहीं ये चले गए तो नहीं, इतना 110 93 ये ठीक है। आपकी ये प्लेटलेट्स की वैल्यू मैक्सिमम फ्लक्चुएट करती है, अर्थिंग वैल्यू प्रॉपर नहीं होने से वो आपको सही करना पड़ेगा। ये हो गया रेड का चलाया था फॉर दिस सैंपल एनालिसिस। फिर यहाँ से अगर सैंपल एनालिसिस रन करना हो तो दोबारा आप यहाँ पे जाओ। ठीक है। सो यू आर कंप्लीटेड। मैं अब थोड़ी चीज़ और बता देता हाँ हूँ। हाँ, थोड़ी सी ज्ञान की बातें बता दो। This is the platelet histogram. This is the WBC histogram. This is the WBC differential histogram, and this one is the RBC histogram. Okay, the RBC histogram यहाँ पे ये क्या बता रहा है? MCV मेन MCV इसका कितना बता रहा है? 53.2 फेम्टोलीटर। ये समझते हो MCV आप? MCA हाँ। MCV था से ना मैं बताऊँ सुन। अब मेन कॉर्पस्कल
मेन नै कर्पस्कल भोल्युम ठिक यसले चाहिँ आरबिसीको मेन भोल्युम चाहिँ कस्तो छ भनेर देखाएको र त्यो कुन पोइन्टमा छ भन्दाखेरि 53.2 भनेको यो फेम्टोलिटरको साइज भयो यो तपाईँको के भन्छ भोल्युम मतलब एम्प्लिट्युड अथवा क्वान्टिटी भयो यो क्वान्टिटी म्याक्सिमम् क्वान्टिटी कतिमा रहेछ भन्दा 53.2 फेम्टोलिटर यहाँबाट यो पिक भएकोलाई सिधा ड्रप गर्ने हो भने तल 52.3 फेम्टोलिटर आउने रहेछ म्याक्सिमम एउटाको साइज चाहिँ 53 एभरेजको साइज आरबिसीको म्याक्सिमम नम्बर अफ आरबिसी जसको एभरेज साइज चाहिँ यति छ यो छ भन्न खोजेको त्रिपन्न चाहिँ धेरै जसोको त्रिपन्न धेरै छ यो भन्न त्यही खोजेको भएर यहाँनिर धेरै रेट आयो यो साइजमा पनि छ साइडमा पनि छ ठुला ठुला साइज दिस वान इज द बेल नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको कर्भ नै छ कि बेल कर्भ नै छ है त्यस पछाडि यो डब्लुबिसी डिफ्रेन्सियलमा दिस वान इज द घोस्ट सेल ब्लू कलरको आएको घोस्ट सेल भन्छ घोस्ट सेल मतलब दिज आर द सेल्स अथवा एकदम स्मल पार्टिकल्सहरूले अथवा नोइज सिग्नलहरूले बनाएको सेल्सहरू एनएसलाइज डिफ्लाइज र डाइल्युटलाई दिएको छ यो फ्याक्ट्री डिफल्टकै हकमा चाहिँ पहिले नै यसमा चाहिँ रिएजेन्ट भोल्युम अलरेडी लागेर आएको थियो रिचार्ज भएर आएको थियो कि अब यसलाई चाहिँ अब तपाईँले यसमा स्क्यान गराउनु पऱ्यो भने डाइल्युटमा जानुहुन्छ भने जस्ट रिप्लेसमा क्लिक गर्नुहुन्छ अहिले कति देखाएको छ 19.6 लिटर देखाएको छ एक्चुअली यो 19.6 लिटर होइन जुन फ्याक्ट्रीमा चाहिँ माइन्ड्रेको अरू भोल्युम साइज पनि हुन्छ कि 20 लिटरवाला भोल्युम साइजको प्याकमा चाहिँ यसलाई चलाएर चलाएको अथवा यसमा चाहिँ प्रोग्राम भएको थियो तर एक्चुअली यो भएको होइन कि यसमा अब यो डाइल्युटलाई तपाईँले के गर्नु पऱ्यो स्क्यान गराउनु पऱ्यो भने कसरी गर्ने रिप्लेस एउटा म गरेर देखाइदिन्छु ल रिप्लेस त्यस पछाडि यसले के भन्छ यहाँनिर गएर यो आरएफआई कि त यसलाई उकाउनु पऱ्यो कि यो आरएफआइडी स्क्यानरलाई तपाईँले यहाँनिर ल्याउनु पऱ्यो हो यसलाई मैले नजिकै राख्छु रिड गरौँ डायलुट सेटअप सक्सेसफुल भन्ने हो अप्लाई गर्ने र एक्चुअली यसको कति थियो 5.5 लिटर थियो त्यही भएर यसको भोल्युम पनि 5.5 लिटर आयो अहिले त कम भयो नि अलिकति त्यो चाहिँ थाहा हुँदैन यसलाई त्यो मेसिनलाई अघि नै गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ त्यो केही फरक परेन दुई चारवटा अलिकति डेड भोल्युम पनि रहन्छ त्यसले केही फरक परेन एप्लाई गर्नु डायलुट एकचोटि रिप्लेस गरिसके पछाडि डायलुटलाई फेरि प्राइमिङ गर्ने काम गर्छ रिएजेन्ट सेटअप ठिक छ अब रिएजेन्ट सेटअप नयाँ किन्दाखेरि गर्नु पऱ्यो नयाँ जोड्दाखेरि सकेपछि अब तपाईँ कन्फ्युज हुनु भएन यु क्यान कल होइन तपाईँसँग टाइम छ भने म त्यो उसमा चाहिँ त्यो बुकमा एभेलेबल मान्छे सरी जुन रिप्लेस गर्छ त्यसलाई गर्नु तिनटैलाई गर्नु परेछ फर्स्टको लागि अहिलेको लागि त तिनटैलाई गर्नु पऱ्यो भोलि गएर तपाईँले जुन रिएजेन्ट सक्यो अब यसलाई मात्रै गर्नु पऱ्यो अब यो आरएफआइडी युजेबल छैन ए सक्यो अब ए थाहा अब अर्को मेसिनमा लगेर पनि युज हुँदैन हुँदैन किनभने यसको डाटा अब यो मेसिनले आफै रिड गरेर आफै डिलिट पनि गर्दैन अब यसले त्यसलाई पनि गर्नु एक्चुअल फिजिकल भ्यालुसँग अपडेट गराउनु पऱ्यो भन्न खोजेको रिप्लेसमा गएर भइसक्यो अब त्यसलाई ल्याएर नजिक आरएफआइडी कहाँ लेखेको छ त्यहाँ नजिक ल्याएर राखिदिनु यहाँ आइहाल्छ ल अप्लाई गरिदिनु भयो तिनटै रिएजेन्ट लोड भइसक्यो प्रोब क्लींजर हाँ प्रोब क्लींजर नहीं आया है नहीं आया है हाँ और ये अब कंपनी को I have told to the company they will send today or tomorrow. ओके ले लिया ना मेरा फोटो हाँ फोटो भी ले लिया बोल दिया अभी आपने एक चीज़ नहीं दिया है इसका है प्रो क्लींजर नहीं इसका अभी तो भी सेटअप देखा ही नहीं ना अभी हमने चेक ही नहीं इसका किया प्रो क्लींजर हो तो यू कैन यूज द सेम प्रो क्लींजर फॉर दिस आल्सो Okay. फॉर टाइम बिहाइंड उसके लिए ओके सैंपल एनालाइसिस ये बात हो गई अब बाकी क्या करना है इसमें कुछ शट डाउन मेंटेनेंस के लिए मेंटेनेंस पे आप जाओगे नहीं पहले मैं ये करता हूँ इसको लॉग ऑफ करता हूँ मैं अभी सर्विस मोड से चला रहा हूँ मैं इसको आपको एडमिन मोड से चलाने के लिए बोलूँगा ये कैपिटल ADMIN ठीक है हाँ बाकी इसमें ADMIN पासवर्ड तो आपका है कौन सा you can set your own username or password also
एडमिन एडमिन से खुला, एडमिन से खुलने के बाद बस इतना ही आता है। पहले बहुत सारा आता था, अब इस पर इतना ही आएगा। तो मेंटेनेंस पे आप क्या करोगे, क्लीनिंग पे जाओगे और वहाँ पे ये इतना वो लाइट आ रहा है ना, पूरा नहीं दिख रहा है। मेंटेनेंस पे मैक्सिमम मैक्सिमम ऑफ द टाइम यू डू द मेंटेनेंस के अंदर ओवरऑल ओवरऑल शॉक में आप प्रो क्लींजर इसको एस्पिरेट कराओगे और ये 8 से 9 मिनट टाइम लेगा। ओवरऑल जितना भी अगर वॉश कर देगा। प्रोटीन कंटेंट है और सेल से डेड सेल से जो ट्यूब्स पे और जो आपको मैंने अभी दिखाया था WBC बात और RBC बात वहाँ पे अटका हुआ है, वो उसको गला के निकाल के फ्लश आउट करेगा। ठीक है। दिस प्रो क्लींजर अभी नहीं है, अभी इसका नहीं है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। मैं अभी नहीं है तो कुछ नहीं है तो पानी पिला के करेंगे। पानी भी पिला कर सकते हैं? और नहीं कुछ नहीं है। हाँ तो पानी लिया भाई एक गिलास में। नहीं इसका पानी उतना भी नहीं चाहिए, मैं आपको बता दूँगा। इसका कैप था ना रेड और ग्रीन वाला कैप, किधर गया? जो रिएजेंट पे ढक्कन का हम लोग निकाले थे, हाँ ये वाला। मैं जस्ट एज ए सैम्पल प्रो क्लींजर भी आप ऐसे ही क्या बोलते हैं, एक 50 ml के बोतल में आता है, वो आप इसमें एस्पिरेट कर ओवरऑल सॉफ्ट प्रेस करोगे और इसमें एस्पिरेट कराओगे। पानी है इसमें, पानी ये रहा ना, इसमें आएगा। जस्ट एज ए सैम्पल। ये 1 ml ये नहीं करना है, लेकिन मैं खाली आपको बता रहा हूँ। प्रो क्लींजर आपके पास आ गया तो आप ओवरऑल शॉप में जाके ये बोलेगा इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, अराउंड 10 मिनट्स। आप करना चाहते हो? हाँ मैं करूँगा। तो ये यहाँ पे ऐसे प्रो क्लींजर वाला बोतल रख के इसमें प्रेस करना है। सो इट विल टेक तकरीबन 9 मिनट। ये डबल बीप करेगा तब आपको इसको निकालोगे। It will take 9 minutes. Okay.